أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق اللہ العظیم. ان آیات سے پہلے والی آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا اور ان کی طرف جن کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا. آج جو رکوع آپ کے سامنے پڑھا گیا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا اس قوم کا اور اس امت کا نام قوم ثمود تھا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف انہی میں سے ایک آدمی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا. قوم عاد کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ یہ لوگ عراق کے پاس کے رہنے والے تھے اور یہ قوم ثمود جو ہے یہ قوم عاد ہی کی ایک شاخ تھی، ایک قبیلہ تھا اور ایک جز تھا جو بعد کے اندر میں بڑھتے بڑھتے 4 بستیوں کے اندر میں یہ پھیل چکے تھے اور اس کے علاوہ بھی ان کی آبادی بڑھ چکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا. اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے دعوت اور تبلیغ کے ذریعہ سے لوگوں کو ایک ہی بات بتلائی، ایمان کی بات، توحید کی بات، رسالت کی بات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات، حساب کتاب کی بات. سارے انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی بات اپنی قوم کو اور اپنی امت کو بتائی. جیسے کل حضرت ہود علیہ السلام کے اس کے اندر میں تذکرہ تھا. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو،
मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारे लिए उसके अलावा और कोई माबूद नहीं है। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात बयान फरमाई कि अल्लाह की ज़ात कौन है, कैसी है, क्या है। हुवा अंशअकुम मिनल अर्ज़ि वस्तअमरकुम फ़ीहा, अल्लाह ताला की ज़ात तो वो है कि जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया। हुवा अंशअकुम मिनल अर्ज़ि, हुवा यानी उसने, अंशअ पैदा किया, वजूद बख्शा, कुम यानी तुमको, मिनल अर्ज़ि ज़मीन से। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया और उसके बाद में हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा फरमाया और फिर दोनों से मिलकर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे इंसानों को पैदा फरमाया। तो गोया इंसानों की बुनियाद और इंसानों को जिस चीज़ से पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने ये मिट्टी से पैदा फरमाया। हुवा अंशअकुम मिनल अर्ज़ि, अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जिसने तुमको ज़मीन से पैदा फरमाया। उसके बाद में आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर में रहाइश के लिए रखा आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया को आबाद करना मंजूर था। तो तकवीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ख़ता करवाई, एक दरख्त जिसका फल खाने से मना किया गया था वो फल खाया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाला। तो जन्नत से निकालने के बाद वस्तअमरकुम फ़ीहा, उसी ज़मीन के अंदर में जिस ज़मीन से तुमको पैदा किया उसी ज़मीन के अंदर में अल्लाह ताला ने तुमको आबाद किया। वस्तअमरकुम फ़ीहा, उस ज़मीन के अंदर में अल्लाह ताला ने तुमको बसाया। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि ज़मीन से पैदा करने के बाद, जन्नत में रहने के बाद इंसान जब दुनिया के अंदर में आया तो दुनिया में आने से पहले इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर में क्या क्या चीज़ें उसको ज़रूरत के लिए, उसको इस्तेमाल के लिए ज़रूरत पड़ती है, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ज़मीन के अंदर में पैदा कर रखा था। और यही वजह है कि आज तक ज़मीन के अंदर में नई नई चीज़ों की ईजाद होती रहती है और आइंदा ज़माने के अंदर में भी नई नई चीज़ों की ईजाद होती रहेगी। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इंसान की ज़िंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम चीज़ों को ज़मीन के अंदर में पैदा कर रखा है। और उलमा किराम ने लिखा है कि इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को सबसे ज़्यादा सस्ता बल्कि मुफ्त में कर दिया। जैसे कि हवा के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। हर सेकंड के अंदर में, हर पल के अंदर में इंसान को हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी ज़मीन के ऊपर में हवा को फैला दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्त के अंदर में अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को भी ज़मीन के अंदर में फैला दिया। फिर ज़रूरत पड़ती है ग़िज़ा की, मकान की, लिबास की, सारी चीज़ों की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी ज़मीन के अंदर में मुहैया फरमा दिया। तो ये है अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी तुम इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। वही तुमको ज़मीन से पैदा करने वाला है, वही ज़मीन के ऊपर में तुमको आबाद करने वाला है। फस्तगफिरू, उससे माफ़ी तलब करो और माफ़ी चाहो। कुफ्र से तौबा करो, शिरक से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की तरफ रुजू करो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि इन्ना रब्बी करीबुन मुजीबुन, बेशक मेरा रब और मेरा परवरदिगार करीब भी है, मुजीबुन, अगर तुम रुजू करोगे और दुआ करोगे तो वो कबूल करने वाला भी है। कुफ्र से अगर तौबा करो, शिरक से अगर तौबा करो, गुनाहों से अगर तौबा करो तो मुजीबुन, ये तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ
तौबा की जो ये तौबा के बारे में जो उलमा किराम ने लिखा है, इस एतबार से तौबा कबूल होगी। एक तो आलमी तौर पर जब सूरज मगरिब की जानिब से निकलेगा तो उस वक्त में तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, किसी की भी तौबा कबूल नहीं होगी, कुफ्र से नहीं, शिरक से नहीं, गुनाहों से नहीं। और इसी तरीके से अगर जान कनी की हालत शुरू हो गई, सकरात की हालत शुरू हो गई, ज़ाहिर पर पर्दा पड़ गया और बातिन पर जो आज पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हट गया, फिर अगर इंसान तौबा करेगा तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। आम हालात के अंदर में अगर बंदे का गुनाह है या अल्लाह का गुनाह है तो अल्लाह का गुनाह तौबा करने से अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन बंदे का अगर गुनाह है तो उसका हक जब तक अदा न कर लिया जाए या उससे माफ़ न करवाया जाए तो वो गुनाह माफ़ नहीं होता। हुकूकुल इबाद का गुनाह जो है अल्लाह के माफ़ करने से भी माफ़ नहीं होता। बंदे को अगर ज़रूरत है तो उसको अदा कर दे, या अगर अदा करने की ताकत नहीं है तो उसे माफ़ करवा ले। ये है तौबा। सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी करीबुन मुजीब, बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है, कबूल करने वाला भी है। कालू, कौम समूद ने कहा, या सालेह, ए सालेह, कद कुन्त फीना मरजूवन, तुम तो हमारे दरमियान के अंदर में एक काबिल उम्मीद थे, हमको तुमसे उम्मीद थी, कब्ल हादा, इससे पहले, अतनहाना, क्या तुम हमको रोकते हो, अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना, जिन चीज़ों को हमारे बाप दादा पूछते थे उसकी इबादत करने से तुम हमको रोकते हो। वइन्नना लफ़ी शक्किन, और बेशक हम बड़े शक के अंदर में हैं, मिम्मा तदऊना इलैहि, जिस ज़ात की तरफ तुम हमको दावत देते हो, मुरीबिन, बड़े शक करने वाले हैं। आम तौर पर पूरे कुरान पाक के अंदर में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दावत और तबलीग का काम शुरू करना और कौम का और उम्मत का नबी और रसूल की मुखालफत करना, पूरे कुरान पाक के अंदर में सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही किस्सा है। आदम, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, जैसे अलन हो अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो वो दुश्मन बन गए। इसी तरीके से कौम आद के सामने जब हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत और तबलीग का काम पेश किया तो वो भी दुश्मन बन गए। यहाँ पर भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को जब दावत और तबलीग का काम पेश किया तो वो भी दुश्मन बन गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, बल्कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूल दुनिया के अंदर में आए तो अपनी कौम के अंदर में, अपनी बस्ती के अंदर में, अपने ख़ानदान के अंदर में काबिल इज़्ज़त होते थे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से मिन जानिबिल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम की और रसूलों की ऐसी तरबियत फरमाता था कि नबूवत से पहले उनकी तरफ कोई उंगली उठा करके भी इशारा नहीं कर सकता था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी तरबियत होती थी और अल्लाह तबारक व तआला उनको गुनाहों से भी बचाता था। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम नबूवत से पहले मासूम और नबूवत के बाद भी मासूम, नबूवत के बाद भी मासूम और नबूवत से पहले भी मासूम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत फरमा ली। कोई गुनाह सगीरा या कोई गुनाह कबीरा नबी की ज़ात से अल्लाह तबारक व तआला ने सरजद नहीं फरमाया। सहाबाए किराम जो है, सहाबाए किराम के बारे में हमारा अकीदा है कि सहाबाए किराम महफूज हैं, मासूम नहीं। मासूम तो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात, और सहाबाए किराम जो वो महफूज है। अल्लाह ने उनसे गुनाहों, अल्लाह ने उनकी गुनाहों से हिफाजत फरमाई। और जिन सहाबाए किराम से गुनाह सरजद हुए ये अल्लाह तबारक व तआला ने करवाए। बहुत से काम ऐसे थे कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ख़िलाफ़ थे, नबूवत के मकाम के ख़िलाफ़ थे, रिसालत के मकाम के ख़िलाफ़ थे। रसूल की ज़ात ऐसा नहीं कर सकती। जैसे मिसाल के तौर पर चोरी करना, ज़िना करना या और जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो सज़ाएँ लिखी हुई है बड़े बड़े गुनाहों की, वो नबी की ज़ात से होना ये नबूवत और रिसालत के मनसब के ख़िलाफ़ था। अल्लाह तबारक व तआला ने वो काम सहाबा किराम से करवाए और उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद जारी फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन सहाबा किराम को माफ़ कर दिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। इन्न रब्बी करीबुन मुजीब क़ालू या सालेह, तो जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत और तबलीग का काम पेश किया तो कहने लगे कि हमको तो तुमसे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि तुम बड़े होने के बाद में तुम हमारे कबीले के सरदार बनोगे या मालिक बनोगे या मालूम नहीं क्या क्या तुम करोगे। ये कहें कि तुम दावत और तबलीग का काम तुमने शुरू कर दिया और जिन माबूद को हमारे बाप दादा इबादत करते थे उससे तुम रोकने लग गए। व इन्नना लफ़ी शक्किन मिम्मा तदऊना इलैह, यकीनन हम शक के अंदर में हैं उन तमाम चीज़ों के अंदर में जिसकी तरफ तुम हम दावत देते हो, यानी अल्लाह की तरफ। मुरीबिन, और हम शक करने वाले हैं। ये कौम का जवाब हुआ। इसके बाद में सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौमी, ए मेरी कौम, अरअयतुम का माना वैसे लफ्ज़ के एतबार से होता है अरअयतुम, क्या तुमने देखा, लेकिन अरअयतुम का लफ्ज़ जो कुरान पाक के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है या हदीस शरीफ के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका माना होता है तुम बताओ। अरअयतुम, तुम बताओ। इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक बय्यिना के ऊपर में हूँ, दलील के ऊपर में हूँ, मेरे परवरदिगार की तरफ से मुझे एक मौजिज़ा अता किया गया हो या मेरे परवरदिगार की तरफ से मुझे कोई किताब अता की गई हो, व आतानी मिन्हु रहमतन, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से मुझे रहमत अता की हो, फमन यंसुरनी मिनल्लाहि इन असैतुहु, फिर अगर मैं नाफरमानी करूं उस अल्लाह की कि जिसने मुझे मौजिज़ा दिया और जिसने मुझे किताब दी और फिर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो मन यंसुरुनी मिनल्लाहि, अल्लाह के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा। इससे मालूम हुआ कि अगर नाफरमानी इंसान नहीं, मोमिन नहीं, नबी और रसूल भी करे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो भी अज़ाब के हकदार बन जाए। फमन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन असैतुहु, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो अल्लाह के अलावा मुझे कौन मदद करेगा। फमा तज़ीदूननी गैर तक़सीरिन, तुम तो मेरा नुकसान ही करते हो और नुकसान के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मेरा नुकसान ही होगा। वो या कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा, यहाँ कौम समूद का अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसर तज़किरा फरमाया हुआ है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको जब अल्लाह की तरफ बुलाया तो उन्होंने इनकार किया, और दूसरी जगह के अंदर में है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से इन्होंने निशानी मांगी कि तुम अल्लाह के रसूल हो, नबी हो, तो कोई निशानी लाओ, कोई मौजिज़ा बताओ। और मौजिज़ा के अंदर में ये मुतालबा किया, ये जो पहाड़ है इस पहाड़ के अंदर में से ऊँटने निकले और वो भी गाभिन ऊँटनी निकले, बाहर निकलने के बाद में वो बच्चा जने तो हम तुम्हारे ऊपर में ईमान लावे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि देखें अभी अल्लाह की तरफ से कोई मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ नहीं है, तुम जिस चीज़ का मुतालबा करते हो और जिसका तकाजा करते हो ऊँटनी का, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने वो मौजिज़ा पूरा कर दिया उसके बाद में अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब
तुम पर उतरेगा, ये उनको समझाया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो माजिज़ा चाहिए, और इस तौर पर जो ऊँटनी निकले। इस पर भी उलमा किराम में बहुत सी बातें लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि अल्लाह ताला पत्थर में से जमादात में से हैवानात को पैदा करता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। पत्थर के अंदर में से अल्लाह ताला ने ऊँटनी को पैदा किया, और नबातात के अंदर में से अल्लाह ताला हैवानात को पैदा करता है। जैसे हमारे यहाँ आम का दरख्त है या कोई फल है, बहुत दिनों तक पड़ा रहता है घर के अंदर में, तो उसके अंदर में कीड़े पड़ जाते हैं। चारों तरफ से फल जो है वो बंद होता है और अंदर में कीड़े हैं। तो ये नबातात के अंदर में भी अल्लाह ताला पैदा करता है हैवानात को। अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार फरमाया अल्लाह ताला ने। पत्थर के अंदर में से ऊँटनी को अल्लाह ताला ने निकाला, वो निकली। उसके बाद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसका नाम है नाकतुल्लाह रखा। नाकतुन का माने ऊँटनी, नाकतुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई। वैसे तो सारी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, लेकिन ये जो ऊँटनी थी ये उनके मुताबिक तकाजे की वजह से खिलाफ आदत अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर से पैदा की और निकाली। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ या कौमी, ए मेरी कौम, हादिही नाकतुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम आयतन, तुम्हारे लिए निशानी है। तुमने निशानी मांगी थी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो कोई माजिज़ा, कोई निशानी, ये निशानी है। लेकिन अब याद रखो, फज़रूहा, इसको छोड़ दो, ताकुल फी अर्दिल्लाही, अल्लाह की ज़मीन के अंदर में खाती फिरती रहे। नाकतुल्लाही अर्जुल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह की ज़मीन, जहाँ खाना चाहे वो खाए, इसको तुम रोक नहीं सकते। वाला तमस्सूहा बिसूइन, और इस ऊँटनी को बुराई से छूना भी नहीं। फयअखुदकुम अज़ाबुन करीबुन, अगर इस ऊँटनी को अगर तुम बुराई से छूओगे, टच करोगे, तो फयअखुदकुम अज़ाबुन करीबुन, जल्दी अज़ाब तुमको पकड़ लेगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको समझाया कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुमने मौजिज़ा तलब किया था वो मौजिज़ा दे दिया, अब तुम ईमान लाओ। ईमान तो नहीं लाए। और उसके बाद में जो है ये ऊँटनी भी अजीब व गरीब किस्म की ऊँटनी थी। जहाँ कहीं भी पानी पीने के लिए जाती थी, सारा पानी ख़त्म, जहाँ कहीं भी जावे। तो फिर बारी मुतय्यन की गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दिन पूरे गांव के जानवर पानी पिएंगे और एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी। दूसरी जगह के अंदर में इसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने तस्कीरा फरमाया हुआ है। लेकिन लोग कंटाल करके, परेशान होकर के ये ऊँटनी कहीं पर भी चली जाती खेत के अंदर में, तो पूरा सारा खेत का जो कुछ भी होता था वो खा जाती थी। तो कुछ लोगों ने ये मशवरा किया नाफरमान कौम में से कि भाई इसका मामला ख़त्म कर दिया जाए। कौम के 3 लोगों ने इसका बीड़ा अपने हाथ के अंदर में उठाया, फ़अक़रूहा, और उसके पाँव काट डाले। इसके ऊपर में पाँव काट डालने के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्यामिन, अब तुम अपने घरों के अंदर में फ़ायदा उठाओ। सलासत अय्यामिन, 3 दिन तक तुम फ़ायदा उठाओ, यानी 3 दिन के अंदर में जो कुछ भी तुम्हें करना हो कर लो। अब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा। ज़ालिका वादुन, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, गैरु मग़ज़ूबिन, जो झूठा नहीं है। पहले से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको बता दिया था कि वाला तमस्सूहा बिसूइन फयअखुदकुम अज़ाबुन करीबुन, इस ऊँटनी को बुराई से छूना भी नहीं, अगर बुराई से छोड़ोगे तो जल्दी से अज़ाब तुमको पकड़ लेगा। तो इन लोगों ने जो है इसके पाँव को काट डाला, उसका जो बच्चा था उस बच्चे को भी मार डाला। फिर अल्लाह का अज़ाब आया। फलम्मा जाअ अमरुना, जब हमारा हुक्म आया, हुक्म से मुराद अज़ाब है। नज्जयना सालिहन
वल्लज़ीना आमनू माअहू नज्जैना सालिहन, जब हमारा अज़ाब आया तो हमने नजात दे दी सालेह अलैहिस्सलाम को, बचा लिया अज़ाब से। वल्लज़ीना आमनू माअहू, और हमने बचा लिया उन लोगों को कि जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर और सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। हमने जो बचाया भी रहमतिन मिन्ना, हमारी तरफ से रहमत हुई, रहम करम का मामला हुआ तो हमने उनको बचा लिया। वमिन खिज़्यि यौमिइज़िन, और उस दिन की रुसवाई से हमने बचा लिया सालेह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ में जो लोग ईमान लाए थे उनको, उस दिन की रुसवाई से अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया। इन्ना रब्बका हुवल कवियुल अज़ीज़, बेशक तेरा परवरदिगार वो बड़ा ताकत वाला है और ज़बरदस्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद के ऊपर में अज़ाब नाजिल फरमाया। व अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमू अस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, और पकड़ लिया उन लोगों को जिन लोगों ने जुल्म किया। अस्सैहतु, चीखने, सैहा चीख को कहते हैं। अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमू, अल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म किया उनको पकड़ लिया चीखने। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, सो वो सुबह के वक्त हो गए अपने घरों के अंदर में ऊँघे पड़े हुए। काल्लम यग्नऊ फ़ीहा, ऐसा लगता था कि वो लोग दुनिया में और उनके घरों के अंदर में थे ही नहीं। इस पर उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए रात के वक्त के अंदर में, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चीख मारी, और उनकी चीख की वजह से ये जो सोए हुए थे तो सोने ही की हालत के अंदर में उनके दिल और उनके कलेजे और उनके दिमाग फट गए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की चीख की आवाज़ की वजह से। और दूसरी जगह के अंदर में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़लज़ले के ज़रिए से इनको हलाक और बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर चीख का तस्कीरा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चीख मारी, हलाक हो गए। दूसरी जगह के अंदर में ज़लज़ले का तस्कीरा है, ज़लज़ला हुआ और हलाक और बर्बाद हो गए। तफसीर कुर्तुबी के अंदर में दोनों बातों को सामने रखकर अल्लामा ने लिखा है कि पहले ज़लज़ला आया, ज़लज़ला आया तो ज़लज़ला आने की वजह से सारे लोग घरों से बाहर निकल गए। जब लोग घरों से बाहर निकले तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी ज़ोरदार चीख मारी, और चीख की वजह से अल्लाह ताला ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। कान्नम यग्नऊ फ़ीहा, ऐसा लगता था कि उन बस्तियों के अंदर में और उन घरों के अंदर में वो लोग रहे ही नहीं थे। अला सुनो, इन्न समूद कफरू रब्बहुम, कौम समूद ने अपने परवरदिगार के साथ में कुफ्र का मामला किया, अपने परवरदिगार का इनकार किया। अला सुनो, बअदन ले समूद, कौम समूद के लिए दूरी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रहमत से दूर कर दिया। तो सूरह हूद के अंदर में हमने बताया था कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला चल रहा है। हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो गया, यहाँ पर सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो गया, और इसके बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, और उसके बाद में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया है। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा, और अलबत्ता तहकीक है हमारे कासिद, हमारे पैगाम लाने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में आए बुशरा, खुशखबरी लेकर। कालू सलामा, जो लोग आए उन्होंने सलाम कहा। काला सलामुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम के जवाब में सलाम कहा। फमा लबिथ अन जाअ बिइज़्लिन हमीद, थोड़ी देर भी नहीं ठहरे थे कि भुना हुआ बछड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले करके आ गए। ये इराक है, इस तरीके से फ़लस्तीन है, मुल्क शाम है, इन्हीं इलाक़ों के अंदर में अंबिया बनी इसराइल आए। सबसे आखिर के अंदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा और अरब के अंदर में आए। तो एक ज़माने के अंदर में
बैक वक्त में एक ज़माने में कई कई रसूल होते थे, जैसे मदाइन के अंदर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके दामाद वो भी नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम, एक घर के अंदर में दो दो नबी थे। एक ही ज़माने के अंदर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने इलाके के रसूल और नबी थे, और लूत अलैहिस्सलाम ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे होते हैं, तो ये भी रसूल थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के अंदर में रखा था, और कुछ 12 या 15 मील यानी 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है, 20-25 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। असल में लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर अज़ाब के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे, और ये अज़ाब के फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जाने से पहले पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में गए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इराक़ के रहने वाले थे, और हज़रत अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से यहाँ आज जो मक्का मुकर्रमा और काबतुल्लाह है वहाँ पर छोड़ दिया था इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। उनकी बीवी थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, उनको लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया, तो इराक़ से वो फ़लस्तीन चले गए, मुल्क शाम के अंदर में चले गए। एक बच्चा हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के हुक्म से अलग हो गया। अब यहाँ मुल्क शाम के अंदर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा ये दोनों रहते थे। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तकरीबन 110 साल की 120 साल की उम्र हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हो चुकी थी, और 90 साल की उम्र इनकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की हो चुकी थी। और ये उम्र का वो दौर है कि जिस दौर के अंदर में आम तौर पर बच्चा पैदा होता नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ये फरिश्ते, रसूल से मुराद यहाँ पर अल्लाह के रसूल नहीं हैं बल्कि फरिश्ते हैं, तो ये पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ गए। वलक़द जाअत रसूलुना इब्राहीम बिल बुशरा, और हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में आए, बिल बुशरा बशारत और खुशखबरी लेकर। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 3 नौजवान लड़कों की शक्ल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के जो बड़े जो 4 फरिश्ते हैं उनमें से इज़राइल जो मौत के फरिश्ते हैं, उनके अलावा ये 3 फरिश्ते नौजवान लड़कों की शक्ल के अंदर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे, बिल बुशरा बशारत और खुशखबरी लेकर। कानू फरिश्तों ने कहा कि सलाम। उलमा ने लिखा है कि वहाँ जाकर के ये नहीं कहा कि सलाम, यानी सलाम किया। फरिश्तों ने जाकर के कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैकुम। काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके जवाब के अंदर में सलाम यानी सलाम का जवाब सलाम ने दिया, सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। ये है, ये नहीं कि सलाम कहा ने सलाम के जवाब में सलाम कहा। कालू सलामन, उन्होंने कहा कि अस्सलामु अलैकुम। काल सलामुन, उसके जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अलैकुमुस्सलाम। फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हमीदिन, थोड़ी देर भी नहीं ठहरे थे कि भुना हुआ बछड़ा लेकर के आए या तला हुआ बछड़ा लेकर के आए। उलमा ने लिखा है कि सबसे बड़े मेहमान नवाज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। इनसे पहले इतनी मेहमान नवाजी दुनिया के ऊपर में होती नहीं थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेहमान के बगैर खाना उनको अच्छा लगता नहीं था। किसी दिन अगर मेहमान न आता तो बस्ती के अंदर में निकलते और कोई भी अगर नया आदमी आता तो उसको पकड़ करके ले आते और उसको घर पर आकर के खाना खिलाते। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर के अंदर में लिखा है, एक मरतबा ऐसा ही हुआ, कोई मेहमान था नहीं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले। बस्ती के अंदर में कोई अजनबी आदमी था और बेईमान था, काफिर था, तो वो नया आदमी देख करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको पकड़ करके ले आए घर पर और खाना खिलाने के लिए बिठाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये खाना खाओ, और उसकी कीमत ये है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो
اور کھانا کھانے کے بعد میں الحمدللہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ اللہ کون ہے؟ اس اللہ کو میں نہیں جانتا، تو کیا بسم اللہ پڑھوں گا نہ کیا الحمدللہ پڑھوں گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگا دیا کہ جب اللہ کو نہیں مانتا ہے تو نہ ماننے والے کے لیے میرا کھانا نہیں ہے، میری دعوت نہیں ہے. تو اس کو بھگا دیا. اب وہ آدمی نکل گیا. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمانے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ بھی آیا تھا کہ بسم اللہ نہ پڑھنے پر اور الحمدللہ نہ پڑھنے پر، یعنی میرا نام نہ لینے پر تم نے اس کو محروم کر دیا کھانے سے اور تم نے اس کو بھگا دیا. اس کی عمر دیکھو، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور میرا نام نہیں لیتا بلکہ میرا دشمن ہے، پھر بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور تم نے اس کو بھگا دیا. تو یہ ڈانٹ ہوئی اللہ کی طرف سے. اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اس کو ڈھونڈ کر کے لائے اور پھر اس کو کھانا کھلایا. ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور تھی. یہ فرشتے پہنچے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اتنے میں بھونا ہوا ایک بچڑا لے کر کے آ گئے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مکان کے پیچھے ایک باڑہ تھا اور وہاں پر ان کے جانور بھی تھے. مہمانوں کو دیکھا تو چھوٹا سا بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر کے لے آئے. مہمان نوازی عربوں کی آج بھی ہے، لیکن اگرچہ پہلے جیسی نہیں ہے، لیکن باہر کے مہمان نوازی عربوں کی رہی. اور فضائل اعمال کے اندر میں بھی حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے عربوں کی مہمان نوازی کے بہت قصے بھی لکھے ہوئے ہیں. 3 دن تک کھانا کھلاتے، اپنے گھر پر لے جاتے اور نام بھی نہیں پوچھتے تھے، بھائی تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آیا اور کس کام کے لیے آیا. حضرت شیخ نے سب قصے لکھے ہوئے ہیں. اچھا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. مہمانوں کے پاس بھونا ہوا بچڑا جب لے کر کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تو فرشتے تھے، کھانا نہیں کھایا انہوں نے، ہاتھ بڑھایا نہیں. فلما رأى، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھ، مہمانوں کے ہاتھ، لا تصل الیہ، کھانے کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، نکیرہم، تو اوپرا سمجھا، عجیب سمجھا. وأوجس منہم خیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر میں خوف پیدا ہوا. یوں کہتے ہیں کہ کسی کے یہاں اگر کوئی دشمن جاوے اور اس کو نمک کھلا دے تو نمک کھلانے کی وجہ سے وہ دشمن جو حملہ کرنے سے واپس چلا جاتا، یوں کہہ کر کہ ہم نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے. بہت سے ایسے قصے بھی ہیں پہلے کے بادشاہوں اور راجاؤں کے زمانوں کے کہ حملہ کرنے کے لیے گئے اور اس کو پتہ چلا کہ یہ دشمن ہے، آئے تو بٹھا کر کے ان کو نمک کھلا دیا تو وہ واپس ہو گئے. بھائی کیوں؟ کہ ہم یہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تم کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، لیکن تمہارا نمک اب ہم نے کھا لیا تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تم پر حملہ کریں. تو اس زمانے کے اندر میں بھی اگر کوئی دشمن ہوتا تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کوئی مہمان نہیں ہے، یہ دشمن ہے. اگر مہمان ہوتے تو کھانا کھاتے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، مہمانوں سے ڈر محسوس کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر فرشتوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ڈر رہے ہیں. قالوا، فرشتوں نے کہا، لا تخف، ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم کو تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، تم ڈرو مت، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں. اچھا، جانا تو وہاں تھا لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب اتارنے کے لیے، اور یہاں اللہ کی حکم سے خوشخبری سنانا تھا. نہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، خوشخبری سنانا تھا. ابراہیم علیہ السلام اور یہ فرشتے بات کر رہے تھے، اور حضرت سارہ علیہ السلام، علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام ہوگا اسحاق، اور اسحاق کا لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام ہوگا یعقوب. تو اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ
वम्रातुहु काइमतुन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा जो खड़ी थी, फज़हिकत, हंसने लगी, फज़हिकत, हंसने लगी। इस आयत के अंदर में तज़किरा नहीं है, दूसरी आयत के अंदर में फसक्कत वजहहा, फसक्कत वजहहा, उस औरत ने अपने चेहरे के ऊपर में तमाचा मारा और कहने लगी कि ये बुढ़िया और बांझ ये बच्चा जनेगी। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नीचे आयत के अंदर में उसी का तज़किरा फरमाया है। वम्रातुहु काइमतुन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी खड़ी खड़ी सुन रही थी, फज़हिकत, हंसने लगी। 90 साल की बुढ़ी और 110 साल का 120 साल का बुढ़ा कहाँ बच्चा पैदा हो, फज़हिकत, हंसने लगी। फबश्शरनाहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको बशारत सुनाई, खुशखबरी सुनाई इसहाक की, वमिन वराई इसहाक याकूब, और ये इसहाक के बाद हमने याकूब की खुशखबरी सुनाई। ये याकूब से मुराद, याकूब को इसराइल कहते हैं और बनी याकूब यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, इसी को बनी इसराइल कहते हैं। आखिरी बात, क़ालत, कहने लगी, या वैलता, हाँ अफसोस, अलिदु, मैं बच्चा जनूंगी, वह अना अजूज़ुन, मैं तो बुढ़ी हूँ, वहादा बाली शैखा, और ये जो मेरे शौहर है ये बिल्कुल खुशल हैं। इन हादा लशैउन अजीब, बेशक ये तो कोई अजीब व गरीब बात है। कालू, फरिश्तों ने कहा, अताजबीना मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र से, अल्लाह के हुक्म से अगर कोई चीज़ पैदा हो तो उससे तुम ताज्जुब करती हो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम, अल्लाह की तरफ से रहमत भी होगी और उसकी तरफ से तुम पर बरकतें भी नाजिल होगी। अहलल बैती, घर वालों की तरफ। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तारीफ शुदा है और बुजुर्गी वाला है। आइंदा कल इंशाअल्लाह आगे की बात अर्ज करेंगे।